morning, students. Hope you all are fine and fit at your home. It's a very crucial time that we have to spend most of the time at home, but we have to keep patience and go through our books and notes and studies regularly with full sincerity. Today, myself, Rita Jain, is going to explain you something about the animal tissue. But before that, we must revise with which topic we have gone through. In the previous video, you have seen about what is tissue. First of all, the question raises what is tissue? A group of cell is called tissue. A group of tissue is called organ. A group of organ is called organ system, and a group of organ system is called the organism. It makes the full organism that you have gone through. You have gone through the various types of the plant tissue, meristematic tissue, permanent tissue. In the meristematic tissue, you have read that the cell keeps on dividing. After dividing, they form a permanent tissue. Permanent tissue is of two types, simple and the complex tissue. Other one is the protective tissue, right? After that, we have to go through the animal tissue. In the animal tissue, I am going to explain you about the muscular tissue. But before that, we must know how many type of tissue we have to go through in the animal tissue. Animal tissue, you have to go through the four types of tissue. First is the epithelial tissue. In epithelial tissue, you have read about squamous, cuboidal, columnar, ciliated epithelial, glandular epithelial. In connective tissue, you have to read about the four topics: areolar tissue, adipose tissue, skeletal, fluid. Areolar tissue is again of two types: tendon, ligament. Skeletal is of two types: bone, cartilage. Fluid is of two types: blood, lymph. In the muscular tissue, you have to go by three topics: striated muscles, smooth muscles, cardiac muscles, and the fourth one is the nervous tissue that you have to go through in this chapter, right? In the previous video, you have read about the epithelial tissue and its type. Today, we are going to read about the muscular tissue. अब हमें बेटा मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है. व्हाट डू यू मीन बाय मस्कुलर टिश्यू? फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यही रेज करता है. जो हमारे मसल टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, और ये मसल सेल्स के बने होते हैं. ये हमारे को मूवमेंट में हेल्प करते हैं. इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और फाइबर्स ही प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. बॉडी का मूवमेंट जैसे हमारे ये हैंड्स मूवमेंट हो रहा है, हमारा लेग्स का मूवमेंट हो रहा है, हमारे नेक का मूवमेंट हो रहा है, आईज का मूवमेंट हो रहा है, या फूड पाइप से फूड नीचे जाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो उसमें जो हेल्प करता है दैट इज अ मस्कुलर टिश्यू. ठीक है ना, दैट कौन ये सब काम कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है. यूरेटर से हमारे यूरिन जब बाहर आता है, एग्जिट आउट करता है, तब भी हमारा कौन हेल्प करता है? मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है. तो मस्कुलर टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं? जो हमारे मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, दैट आर कॉल्ड द मस्कुलर टिश्यू. सो इफ यू हैव टू डिफाइन द व्हाट डू यू मीन बाय मस्कुलर टिश्यू, द मस्कुलर टिश्यू ऑफ द बॉडी फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्टाइल tissue and are made of the muscle cells, and they have a contractile proteins which help in movement. It is a three type. First is the striated muscle. Striated में बेटा we have to memorize the three words. First of all, striated का मतलब हमारे को यहाँ पर three words से आपको करना है, memorize करना है. क्या क्या है वो words हमारे? First word is stripe. Second word is voluntary. Third word is skeletal.
These are the three words that we have to. अब यहाँ पर इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है? स्ट्राइप का क्या मतलब है बेटा? स्ट्राइप का मतलब होता है ये जो आपको ऑल्टरनेट यहाँ पर लाइट एंड डार्क कलर के बैंड नजर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्राइप, राइट? ये जो आपको ब्लैक व्हाइट जैसे चेस्ट में होता है ना, चेस्ट में ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं आपके, इसी तरह से हमारी इन वाली मसल्स में, स्ट्राइटेड मसल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग डार्क एंड लाइट बैंड के नाम से जानते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड द स्ट्राइप। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है ना? ये मूवमेंट, ये जो मैं हैंड्स का मूवमेंट कर रही हूँ, दिस इज अ मेरी मर्जी से हो रहा है ना? लेकिन क्या आंखों का मूवमेंट हमारी मर्जी से होता है? नो, आंखों का मूवमेंट हमारी मर्जी से नहीं होता। फूड पाइप में फूड नीचे जा रहा है, हमारी मर्जी से जा रहा है? नहीं जा रहा है, नहीं जाता है ना। लेग्स का मूवमेंट हो गया, लिम्स का मूवमेंट हो गया, टंग का मूवमेंट हो गया, वो हमारी मर्जी से होता है। दैट इज अ वॉलेंट्री। स्केलेटल, स्केलेटल का मतलब होता है बोन से अटैच होना। जो मसल्स हमारी बोन से अटैच हो जाती हैं उसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। तो स्ट्राइटेड मसल जब भी वर्ड आएगा, यू हैव टू मेमोराइज द थ्री वर्ड्स: स्ट्राइप्ड, voluntary, skeletal. Stripe means alternate light and dark bands. Voluntary, which works according to our will. Skeletal means it is attached to the bones. Now, what are the other features of this type of muscles? These, this is surrounded by a plasma membrane, a distinct plasma membrane, which is known as the sarcolemma. Which is known as the sarcolemma. There is a cytoplasm in it, which is known as the sarcoplasma. सार्कोप्लाज्मा, उसको हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स तो प्रेजेंट ही होंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो यहाँ पर आपके जो न्यूक्लियस होते हैं वो किस तरफ होते हैं? पेरिफेरी की तरफ होते हैं। किसके तरफ होते हैं? पेरिफेरी की तरफ। पेरिफेरी का मतलब होता है बाहर की साइड होना, वॉल्स की साइड होना, दैट इज अ पेरिफेरी। अगर आप लो पावर में देखेंगे तो आपको ये स्ट्राइटेड मसल्स इस तरह से नजर आएंगी। अगर आप हाई पावर में देखेंगे तो ये स्ट्राइटेड मसल्स इस तरह से नजर आएंगी। ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ। और क्या स्ट्रक्चर में आता है इसका? इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग नहीं होती है इसके अंदर, अनब्रांच्ड, राइट? इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड होता है आपका स्ट्राइटेड मसल्स, आपका स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका इनकी लोकेशन क्या होती है, लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द लिम्स, इट इज प्रेजेंट इन द लिम्स। चाहे आपके हैंड्स हैं, चाहे आपके लेग्स है, कहीं भी है, यहाँ पर आपके दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है स्ट्राइटेड मसल्स। इसके अलावा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी मसल्स? टांग में, टांग का मूवमेंट हो रहा है हमारा, जहां हम अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं। फैरिंग्स, जो हवा हमारे अंदर जाती है, यहाँ पर हमारा स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। फैरिंग्स में, डायाफ्रागम में, अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस हमारा यहाँ पर होता है। ये पूरा फूड पाइप है जहां से खाना नीचे जा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो अपर पार्ट में आपका होता है, वहां पर क्या होती है? आपकी स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। तो ये स्ट्राइटेड मसल्स है, और उसको हम विसरल स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरल स्ट्राइटेड मसल, विसरल स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। ओके, इनको क्या बोलते हैं? विसरल स्ट्राइटेड मसल, जो हमारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जो टांग में बोला मैंने आपको, इसोफेगस में बोला, ठीक है। स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं आपकी पावरफुल होती हैं, रैपिड कंट्रैक्शन होता है, फोर्स और लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, आपका वॉलेंटरी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये स्ट्राइटेड मसल्स का फंक्शन होता है। Now we will learn how to make a diagram of a striated muscles. First of all, we draw lines like this.
Then make a stripes in it. We know it is striped, alternate light and dark bands. We have to make a light and dark bands in it. Like this, we make a this is how we make the light and dark bands. Then we make a nucleus in it. How we make a nucleus in it? We know the nucleoplasm. This is how we can make a diagram of a striated muscles, and we have to do the labeling. This is sarcolemma, dark band, light band, nucleus, sarcoplasma. This is the labeling of a striated muscles. I hope you have understood how to make a diagram of a striated muscle. Another way we can make a diagram of a striated muscle is take a cylindrical fibers,
Draw like this. Then make a stripes. Show the nucleus at the peripheral position. Since it is multinucleated, draw some circles here. These are called muscle fibers. This is how we can make a simple diagram of our striated muscles. These are the dark bands, light bands, nucleus, sarcolemma, and these are muscle fibers. You can make. Next is the unstriated muscles or the smooth muscles. Here you can see that it is spindle shape. It is spindle shape. स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पिंडल शेप का मतलब होता है हमारी इस तरह से शेप होना। ये हमारी स्पिंडल शेप है, राइट। यहाँ पर आपको सेंटर में नजर आ रहा है कि यहाँ पर सिगार शेप न्यूक्लियस नजर आ रहा है। इसे सिगार, ये जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलीमा कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है आपका, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो आपका सार्कोप्लाज्मा है, ठीक है। जो आपके यहाँ पे ये फाइबर्स नजर आ रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द मायोफिब्रिल्स, दैट आर कॉल्ड द मायोफिब्रिल्स, राइट। It is spindle shape. Cigar shape nucleus is present at the center. It is uninucleated. It is uninucleated. Cigar shape nucleus. Uninucleated. Right? और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? होलो ऑर्गन्स पे, जो हमारे विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं। विस्ट्रल ऑर्गन्स कैसे? हार्ट को छोड़ के जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है, राइट। जैसे ईसोफेगस हो गया, फूड पाइप में होता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, राइट, वहां पर प्रेजेंट होगा। हमारा जो यूरेटर होता है उसे यूरिन एग्जिट करने के लिए होता है, यूट्रस में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, डायफ्रागम में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाइज में प्रेजेंट होता है, हमारा अनस्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट होता है। और ये इनवॉलेंट्री होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, जो हमारी मर्जी से काम नहीं करता। इनवॉलेंट्री का मतलब है हमारी मर्जी से काम ना करना, राइट। और इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जब हम लोग खाना खाते हैं, ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, हम लोग अपने पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम लोग खाना खा रहे हैं, फूड नीचे की तरफ जाता है, हमें पता चलता है कि नहीं पता चलता है? वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया। वो क्या हो गया आपका? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया। ग्लैंड से सिक्रीशंस होते हैं, वो सिक्रीशंस का जो एग्जिट होती है, वो ब्लड में आना, उनके सिक्रीशंस का, वो भी कौन सा मूवमेंट है हमारा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया। अब वो किसकी हेल्प से होता है? अनस्ट्रैटेड मसल्स की हेल्प से होता है। इसलिए इनको विसरल मसल्स भी कहा जाता है। ये हमारी मर्जी से काम नहीं करती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड भी रहती हैं, कुछ लॉन्ग टाइम तक के लिए कॉन्ट्रैक्टेड भी रह सकती हैं ये वाली मसल्स। तो ये किसके बारे में था? अनस्ट्रैटेड मसल्स के लिए। फिर आपका आता है, नेक्स्ट आता है बेटा कार्डियक मसल्स। Now we will learn how to make a diagram of unstriated muscles. First draw a spindle shape. A cigar shaped nucleus at the center. Then
Draw myofibrils, parallel bundles. Draw sarcoplasma. This is how we can make a diagram of unstriated muscle. Labeling: nucleus, sarcolemma, sarcoplasma, myofibrils. This is a diagram of unstriated muscles. Next is our cardiac muscle. अब cardiac muscles, as it is clear, it is present in the heart. Cardiac मतलब ये heart में present होता है. ये बेटा ब्रांच्ड होती हैं, ये ब्रांच्ड हैं. देखिए आप, इसमें दोनों तरह के प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइटेड भी और अनस्ट्राइटेड. स्मूथ मसल्स भी होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर जो लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं ये यहाँ पर फेंट होते हैं एज कंपेयर टू द स्ट्राइटेड मसल्स. ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. एक यहाँ पे जो सबसे स्पेशल फीचर है इसका, वो है इसका इंटरकैलेटेड डिस्क. जो ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती है बेटा, ये इम्पल्स बूस्टर होती है, जो बूस्ट करने के काम पर आती है, और ये हार्ट में प्रेजेंट होती है. दिस इज द ओनली मसल विच इज प्रेजेंट इन द हार्ट. ये टायरलेसली काम करती है, इनवॉलेंट्री होती है आपकी ये यहाँ पर, और यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं. तो क्या क्या फीचर्स हो गए इसके, हम फीचर्स देखते हैं इसके. इनवॉलेंट्री, ब्रांच्ड, uninucleated, present in heart, special feature intercalated disc. ये हमारे प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर. तो ये चीजें हमें याद रखनी है बेटा कि ये इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारी मर्जी से काम ना करे, ब्रांच का मतलब इसमें दोनों तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हैं आपके, स्ट्राइटेड मसल्स भी अनस्ट्राइटेड मसल्स भी. यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, हार्ट में प्रेजेंट है, और इसका जो स्पेशल फीचर है वो है आपका इंटरकैलेटेड डिस्क, जो एक इम्पल्स बूस्टर है, और ये टायरलेसली वर्क करता है, बिना रुके काम करता है. So this is all about the muscles. Today we are going to learn how the cardiac muscles are formed. We know it is branch and it is consists of both type of muscles, striated and the unstriated. How we will form this? In this way, then we form a nucleus. We make a nucleus. It is uninucleated.
This is how we have made the nucleus, right? Now we will make the stripes in it. How we make the stripes? This is how we can make the stripes. Then we make a fibers in it. These are the unstriated muscles in it. So we make a fibers like this. Right. Then we have to make a sarcoplasma. We know it has a special feature, an intercalated disc. Then we have to make an intercalated disc. Like this we can make an intercalated disc. Right. Now label it. Nucleus, intercalated disc, dark band, light band, connective tissue, blood vessels. This is how we can label it, and these are the branchings. The branch originates from it. So this is a diagram of a cardiac muscle. Difference between the striated, unstriated, and the cardiac muscle. Striated means striped. These are unstriped. This is between the striated and the unstriated muscle. Voluntary, involuntary, skeletal muscle attached to the bones, help in the movement, right? There is a rhythmic contraction and relaxation throughout the life and pump blood in the cardiac muscle. Now the structural difference between the striated, unstriated, and the cardiac. Striated muscles are long, cylindrical shape, unbranched cell, multinucleated. Fibers are arranged in the form of bundles, have dark and light bands. Unstriated, spindle-shaped cell, uninucleated. Fibers arranged in the form of sheet. sheet का मतलब parallel होना. कैसे होना? Parallel होना. Dark and light bands are absent.
Here, cardiac muscle is short, cylindrical shape, branched cell, uninucleated. Fibers are arranged in the form of network. Faint and light dark bands are present. Location: striated muscles are present in limbs, tongue, body, face, neck. Unstriated are present in ureter, bronchi or lungs, alimentary canal, wall, blood vessels, or you can say urinary bladder, uterus. यहाँ भी आपके present होते हैं. It is present in the heart. Work striate muscle are now on the basis of the working. Striated muscles work according to our will. It contract quickly but can't remain contracted for a long, so get fatigued and tired. Unstrived contract slowly but can remain contracted for long, so don't get fatigued and tired. Cardiac muscle work restlessly. It contract rapidly, quickly and rhythmically. They do not get fatigued and tired. This is all about the muscular tissue. Hope you are all able to understand the muscular tissue.